In the previous class, we discussed about application of Gauss law. Application of Gauss law. Application of Gauss law. So your Gauss law is not phi is equal to integration E dot N ds is equal to q upon epsilon. This is your Gauss law. So if you want to find the application is what, with the help of Gauss law we will have to find electric field due to a charge distribution or due to a charge. Electric field at a point due to charge or charge distribution. This is our task और this is our topic. तो हमें ये पढ़ना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और चार्ज हो, तो हाउ कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. क्लियर? So this is the formula phi is equal to integration E dot N ds. So what? Rule क्या है? We will draw a Gaussian surface. पहला rule, we will draw a Gaussian surface. We will, ये सब करा दिया था मैंने, just recap, 5 minute recap. We will draw a Gaussian surface. Gaussian surface that should be symmetrical to charge distribution, symmetrical to charge or charge distribution. Symmetrical to charge or charge distribution. Second point, the surface or the Gaussian surface should pass through the point where you want to find the electric field. The Gaussian surface should pass through the point where you want to find electric field. Clear? This is the second property of Gaussian surface. Clear? And if there is a point charge, your Gaussian surface will be a sphere. If there is a line charge, the Gaussian surface will be cylinder. Clear? And if there is a charge plane sheet, then Gaussian surface will be a cylinder or a cube. Clear? So for point charge or for a sphere also, if there is a spherical charge object, your Gaussian surface will be a sphere. Clear? So for a spherical charge distribution, the Gaussian surface will be a sphere. For point charge distribution, the Gaussian surface will be a sphere. For line charge distribution, Gaussian surface will be cylinder. And for plane charge distribution, plane charge sheet, your Gaussian surface will be cube or cylinder. Clear? So these are the Gaussian surface. Now we will study some other properties of Gaussian surface. क्लियर? ये सब करा दिया तो यू हैव टू नॉट राइट दिस, है कि नहीं? तो इरेज कर रहा हूँ मैं. क्लियर? ये सब करा रखा है. लिखना है किसी ने? लिखना है किसी ने क्या? क्लियर? ये करा रखा है. जस्ट रिकैप. क्लियर? जस्ट रिकैप. So let us try a question, and that is question of IIT. Clear? IIT में आया हुआ था एक क्वेश्चन. ये करता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं अगला प्रॉपर्टी कराऊंगा. इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, देखो. एंड द क्वेश्चन इज, ये मैंने ग्रुप पे भी डाला था, बहुतों ने कर लिया है और बहुतों ने नहीं किया है. A solid sphere of radius R has a charge Q distributed in its volume with charge density gives a
with the charge density rho is equal to k r to the power alpha, where k and alpha are constant, where k and alpha constant and r is the distance from its center. If the electric field at r equal to r upon 2 is 1 by 8 times that at r equal to r. Find the value of alpha. Find the value of alpha. And this is the IIT 2009. Clear? Subjective क्वेश्चन था ये. Clear? फ्री ऑफ कैलकुलेट. आज भी किसी ने वीडियो नहीं किया यार, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैंने तुमसे बोलना ही नहीं है कुछ. क्या करूँ लेडी, मैं तो आदत से मजबूर. हाँ, हमने ना करना कुछ बोल रहा टीचर. कोई नहीं. एक बिच्छू था, वो नदी में गिर गया था. ठीक है, तो एक साधु था, महात्मा था, वो नहा रहा, तो उसको देखा कि बिच्छू तैर रहा है, तो वो हाथ में उठाया उस बिच्छू को. तो बिच्छू क्या कर रहा, उस पर डंक मारता, उसके हाथ पर डंक मार रहा बिच्छू. फिर दर्द होता, फिर साधु छोड़ देते, फिर दोबारा उठाते और फिर डंक मारता, फिर साधु छोड़ देते. बाहर एक था, वो देख रहा था कि क्या कर रहा है साधु महात्मा. तो फिर पूछ दिया उसने, क्या कर रहे हैं. तो साधु ने बोला कि देखो इसका काम है डंक मारना. ये डंक मारा जब नहीं छोड़ सकता, तो मैं इसको सेव करना, बचाना कोई छोड़ू. साधु महात्मा का काम ही क्या है, किसी का हेल्प करना, जान नहीं लेना है कि नहीं, ये होनी चाहिए. तो तुम ऑन नहीं करो, मैं तुमसे रोज बोलूँगा. So this is the final question. A solid sphere of radius r has a charge q distributed. Its volume with a charge density rho is equal to k r to the power alpha. So this is your rho, which is k r to the power alpha. This is the density, charge density, and also alpha and k r constant, but r is a variable, because if this is a solid sphere, so from the center the distance of this point, let us say p is different, the distance of point q is different, the distance of point r is different. So if you are moving away from the center, your r is changing. So r is changing, so what? So this rho is changing, means rho is not constant, rho is a variable. If rho is constant, rho constant होता बाबू, then charge will be q is equal to r, simply rho into volume. Clear? अगर rho constant होता तो charge के लिए क्या करते, you just multiply the charge density and the volume. But here charge is not constant, rho is not constant, so charge is equal to what? Integration rho dv. Means you will have to take a small volume element and then you have to find charge on that volume element and then you have to integrate that. This is the procedure. तो पहले charge find करो. होता क्या देखो, और क्या दरकार है, k and alpha are constant and r is the distance from its center. If the electric field at r upon 2, देखो r is equal to r upon 2, यानी कि यह स्फीयर बाबू, इसका कुछ रेडियस r मान लो, तो एक पॉइंट है जहाँ जिसका रेडियस कितना r/2, यहाँ से r/2 पे एक पॉइंट है, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक यहाँ पॉइंट है r का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E r/2 is equal to 1/8 ER. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड at this point is equal to 1/8 times electric field at this. यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रिक है इसका क्या है, 8 टाइम्स छोटा है, यानी कि यहाँ वाला 8 टाइम्स क्या बड़ा है, ये वाला 8 टाइम्स बड़ा है इससे. क्लियर? दिस इज द कंडीशन, ये गिवन है. हम क्या करेंगे बाबू, और पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू बताओ, तो हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करना है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करना है. एंड देयर रिलेशन बिटवीन टू, इन दोनों का रिलेशन देख लेंगे. देयर विल बी ए इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. करना क्या है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करो और फिर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करो. क्लियर? सो ये क्वेश्चन है, जल्दी लिखो इस क्वेश्चन को.
क्लियर? ये ग्रुप में क्वेश्चन भेज रखा है तो मैं टाइम एक्स्ट्रा नहीं दूंगा करने के लिए, ये ग्रुप में भेज रखा है मैंने। करूँ इरेज, करूँ इरेज, should I read this? ये कर रखे हो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, ये ग्रुप का क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ इसको। तो बाबू रो इक्वल टू के r to the power alpha, this is the sphere and there is a point P, मान लो यहाँ point P है और यहाँ पर point बाबू एक Q है और this is the center, this distance is r/2 and this is r. Consider a random point over here. इस point का सिचुएशन क्या r है, इस point के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। क्या होगा? This is the point और इस point इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्वेश्चन क्या है? There should be a Gaussian surface passing through the point where you want to find the electric field and also that Gaussian surface should be symmetrical to charge distribution. तो इस point को तुम्हें फाइंड करना है, क्या करोगे? यहाँ से स्क्वायर बनाओगे, इसका रेडियस r होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे क्या होगा? अब यहाँ गॉस अप्लाई करो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एन भी क्या होगा? इधर ही होगा ना, इधर ही होगा। मींस ई वेक्टर एंड एन आर इन दी सेम डायरेक्शन। सो एट इंटीग्रेशन phi equal to integration e dot ds is equal to r integration e ds cos of 0 which is integration e ds. Clear? Clear? And which is equal to e integration ds and integration ds will e 4 pi r square, where 4 pi r square is the area of this Gaussian circle, area of this Gaussian circle. Now also phi is equal to, you know, phi is equal to q inside upon epsilon. This q inside is the charge inside the Gaussian surface, यानी कि इसके अंदर जो चार्ज है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? यानी कि स्क्वायर वाला और यहाँ से r डिस्टेंस है, ये स्क्वायर ये वाला r डिस्टेंस। क्लियर? और इसके अंदर चार्ज कितना फाइंड करना है तो हमने क्या करेंगे? हम यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा क्या लेंगे बाबू? वॉल्यूम लेंगे ऑफ थिकनेस dx. दिस इज द x डिस्टेंस एंड थिकनेस इज dx. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करेंगे कि ऐसा करेंगे कि ये रेडियस है बाबू, ये छोटा वाला स्क्वायर है ना रेडियस का, दिस इज द स्क्वायर, इसके अंदर चार्ज फाइंड करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पे ये क्या ले लेंगे? dr का रेडियस का वो ले लेंगे और dr थिकनेस का स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे और ऐसा करेंगे q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dv और लिखेंगे इंटीग्रेशन रो 4 पाई r स्क्वायर dr और फिर यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन अल्फा के वाले क्या लिखेंगे बेटे? k r टू द पावर अल्फा 4 पाई r स्क्वायर dr और लिमिट डाल देंगे 0 टू r क्योंकि अपना रेडियस ये है। देखो ये 12th स्टैंडर्ड सही है, क्लियर? तुम्हारे लिए भी सही है, लेकिन अगर मैं काट दूंगा ये गलत है। क्यों? क्योंकि लिमिट क्या होना चाहिए? लिमिट आर फिक्स्ड क्वांटिटी ना, लिमिट क्या होता है? वो फिक्स है ना, दैट इज द बाउंड्री। हियर इज 0, हियर इज r, यानी कि यहाँ तुम्हारा 0 है और यहाँ r है। दिस इज योर बाउंड्री एंड दिस इज नॉन टू, दिस इज फिक्स, दैट इज नॉट वेरिएबल। इसके लिए r क्या है? वो फिक्स है ना। अब तुमने एक रैंडम वॉल्यूम एलिमेंट लिया है तो अब यहाँ भी इसको भी r dr बोल रहे हो, इसको r बोल रहे हो, गलत है ना। यहाँ से एक डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एलिमेंट लो और फिर इंटीग्रेट को उसको कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे? 0 टू r। ये रिजल्ट सही आएगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन रियल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि क्या तुमने यहाँ जो क्वांटिटी होगा दैट शुड बी वेरिएबल। ये तुमने 0 टू r रख दिया, ये क्या है? ये 0 और r क्या? दे आर द लिमिट, ये तुमको पता है, ये फिक्स है। x कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है? x यहाँ से यहाँ वेरी करेगा। इसके केस में क्या है कि r को यहाँ से यहाँ वेरी करवा रहे हैं, r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? यहाँ से यहाँ वेरी करेगा और फिर तुमने r को वेरिएबल मान लिया और कहीं पर r को लिमिट भी मान रहे हो। दिस इज द रॉन्ग। क्लियर? तुम कर दोगे, बुक में भी कर देता है। बुक में भी क्या करेगा कि यहाँ से ये इसका रेडियस फिक्स है r, तो क्या करोगे कि यहाँ से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का ले लेगा और फिर इंटीग्रेट करके हियर dr इज वेरिएबल एंड हियर r इज लिमिट फिक्स्ड पॉइंट, जो कि रॉन्ग है। इंटीग्रेशन में हमेशा वेरिएबल आएगा या डिफरेंशिएशन में ना, तो यहाँ से हम जनरल ये रॉन्ग कंसीडर करेंगे। क्या? q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dv और रो के बाद इंटीग्रेशन लिखेंगे k x टू द पावर अल्फा, dv के बाद लिखेंगे 4 पाई x स्क्वायर dx और अब लिमिट क्या होगा बाबू? x का 0 टू r। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर? सो यू हैव टू चूज व्हिच वन इज द वेरिएबल एंड व्हिच वन इज द कांस्टेंट। क्लियर है सबको? बहुत बच्चों ने ऐसे ही कर दिया, बुक्स में भी करता है, लेकिन ये गलत है, ये पाप है, ऐसे नहीं किया जाता। यू हैव टू चूज और यू हैव टू स्पेसिफाई व्हिच वन इज द
कांस्टेंट वैल्यू चेंज द वेरिएबल। क्लियर क्लियर गॉट माय पॉइंट? अगर क्लियर हो तो हमको आप करो ये चीजें। हाँ, कभी भी काम करना है तो ऐसे करना। क्लियर? सो व्हाट क्यू कर लो, आप क्या होगा ये बाबू, अल्फा 4 पाई के एंड इंटीग्रेशन x टू द पावर अल्फा प्लस 2 dx 0 टू r। क्लियर? 0 टू r। क्लियर? अब करो इसको। क्लियर? ये कभी नहीं करोगे, ये गलत है, तो इधर मैं कराता हूँ। सो व्हाट ऊपर कर दूँ यहाँ, तो q इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो q इक्वल टू 4 पाई के एंड दिस इज x टू द पावर अल्फा प्लस 3 बाई अल्फा प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 टू r इक्वल टू 4 पाई के एंड x टू द पावर r टू द पावर अल्फा प्लस 3 बाई अल्फा प्लस 3। ये आ गया, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर? सबको विजिबल है ऊपर बोर्ड? विजिबल है? जल्दी करो जल्दी करो। कर लिया बाबू? कर लिया? कर लिया? बोलो जल्दी। कर लिया सबने? सो देखो, डोंट गेट कंफ्यूज, ये फाई है। फाई में मैं ऐसे बनाता हूँ, लंबा लाइन देता हूँ ये, और चार्ज में या तो क्यू ऐसे बनाऊंगा, ध्यान रखना ये फाई और क्यू में कंफ्यूजन नहीं हो जाना। क्लियर? तो तुम अपने हिसाब से बेटर कर लेना, ये फाई है। क्लियर? या क्यू स्मॉल ले लो या कैपिटल हो तो ये ऊपर डंडी नहीं बढ़ाना। क्लियर? ऊपर डंडी नहीं बढ़ाना। गॉट गॉट? कर लिया? कर लिया कि नहीं? बाकी नहीं रहा कुछ कर लिया? जब किसी का रिएक्शन ही नहीं आ रहा यार। So what? This is so what? यहाँ पुट करो, हाँ अपना फॉर्मूला क्या है? दिस इज ना, तो Q इनसाइड कितना है बेटे? Q इनसाइड इज व्हाट? दिस ना 4 पाई के and alpha plus 3 and that is r alpha plus 3. This is your phi. So this is phi, this is phi. So they must be equal. They must be equal. So दोनों phi को इक्वल करो, you can find the electric field at a distance r. So E 4 pi r square equal to 4 pi k alpha plus 3 r alpha plus 3. Clear? So E is equal to 4 pi k upon alpha plus 3 4 pi r square and r alpha plus 3. So what? 4 pi, तो 4 pi से 4 pi कैंसिल कर दो बाबू, k upon alpha plus 3 and r alpha plus 3 minus 2 which is equal to k by alpha plus 3 and k by alpha plus 3 and r alpha plus 1 this is electric field, this is the electric field. Clear? At a distance r random point हमने फाइंड कर लिया। Clear? So clear? So this is the electric field at a random point r, means electric field is the function of r. So electric field is the function of r. Er is equal to k upon alpha plus 3 r to the power alpha plus 1. Electric field is the function of r. हमने कहाँ फाइंड करना है? r by 2 और r पे, तो e r by 2, यानी in place of a small r you have to put r by 2. So what? K alpha plus 3 and r by 2 to the power alpha plus 1. Clear? And also e r, electric field at a distance r. So what? In place of a small r you have to put capital R. So what? क्या हो जाएगा? K by alpha plus 3 and r alpha plus 1. Just equate the two. Clear? So what? E, you know, E, there is relation E r by 2 is equal to 1 by 8 times E r. Is that okay? So इस रिलेशन में कट करो बाबू, तो हो गया क्या? K upon alpha plus 3 and r by 2 alpha plus 1 is equal to 1 by 8 times K by alpha plus 3 and r alpha plus 1. होगा क्या? ये कैंसिल हो जाएंगे, ये गायब हो जाएगा। क्लियर? बचेगा क्या? r to the power r by 2 alpha plus 1 is equal to 1 by 8 times r alpha plus 1. क्लियर? alpha plus 1 इसको कर दो, ऊपर कितना हो जाएगा? r alpha plus 1 by 2 alpha plus 1
इक्वल टू 1/8 r अल्फा प्लस 1। ये कट गया, बचा कितना बेटे 1 इधर कर देता हूँ मैं 1/2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 1/8 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 8 so 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 to the power 3 so अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 3 so अल्फा इक्वल टू 2। दिस इज योर क्लियर, गॉट माय पॉइंट, क्लियर आई बात समझ। so अल्फा इक्वल टू 2। क्लियर, जल्दी करो। डन बाबू डन, कर लिया सबने? कर लिया तो थंब को आप करो। तो बड़ा किसी का तो दिखाई ना दे रहा इधर, थंब को आप करो, जल्दी करो। चलो बाबू, फोटो इसका भेज दिया है ग्रुप पे। कंप्लीट फॉर्म देयर है कि नहीं? मैं आगे रेस करता हूँ, इजी है यार, जल्दी करो। कर लिया कि नहीं कर लिया? कोई बोलेगा कुछ? गो जानवी कर लिया, अंकित कर लिया, स्नेहा कर लिया सबने? जानी तो पहले ही कर रखा था। अरे हाँ, इंटरेस्टिंग कर सकते हो इधर इधर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को। तो आज बायो की क्लास में कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अगर कंप्लेन आई तो मेरी क्रेडिट खराब होगी, फिर मुझे पूछता है रोज फोन करके, ठीक है? तो मुझे रोज सुनाता है तो तुम लोग थोड़ा सा ढंग से पढ़ो। So we will study next property, Gaussian surface. Your Gaussian surface should not pass through a point charge. Your Gaussian surface should not pass through a point charge. Clear? This Gaussian surface should not pass through a point charge, but the Gaussian surface may pass through charge distribution. But may pass through a charge distribution. Charge distribution means standard object ना, having some dimension. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा ना जहाँ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होगा। जैसे दिस इज अ लाइन चार्ज एलिमेंट, क्या होगा? ये स्टैंडर्ड हो गया। दिस इज अ स्फेरिकल चार्ज ऑब्जेक्ट, so they are the standard objects, so they are the charge distribution। या डिस्क ले लो या रिंग ले लो, ये डिस्क हो गया, या रिंग ले लो। तो क्या होगा बाबू का गॉसियन, मान लो कि किसी पॉइंट इस पॉइंट को फाइंड करना है, क्लियर? या इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो तुम्हारा गॉसियन सर्फेस बाबू ऐसे हो सकता है। इसे केस में गॉसियन सर्फेस ऐसे हो सकता है। मींस योर गॉसियन सर्फेस में पास थ्रू एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए गॉसियन सर्फेस क्या होगा बेटा? सिलेंडर हो जाएगा ना। दिस इज अ प्लेन चार्ज शीट, गॉसियन सर्फेस क्या होगा? या तो क्यूब हो जाएगा या तो सिलेंडर होगा। सो दिस गॉसियन सर्फेस पासिंग थ्रू द शीट ना, ये चार्ज शीट है, इसके थ्रू पास हो रहा, ये भी शीट इसके थ्रू पास हो रहा, क्लियर? सो फॉर एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट और फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन योर गॉसियन सर्फेस may pass through the charge distribution, but for point charge it should not pass through the charge distribution। मान लो कि एक यहाँ पॉइंट चार्ज है Q1 और एक यहाँ पॉइंट चार्ज है Q2 और तुम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करना चाहते हो, तो तुम्हारा गॉसियन सर्फेस क्या होगा? ऐसे होगा। ऐसा कोई गॉसियन सर्फेस नहीं होगा जो कि Q1 से पास Q2 से पास कर रहा है, क्लियर? Q2 से पास करके क्या होगा? वो गलत है, ये सही है, क्लियर? तो योर गॉसियन सर्फेस should not pass through point charge, but it may pass through
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों व्हाई दिस इज हैपनिंग? सो योर गॉसियन सरफेस में पास थ्रू द extended object or the charge distribution but should not pass to the point charge object. Why? तो होगा क्या? If there is a point charge q and the question is find electric field at charge itself. एक point charge है और बोला जहाँ चार्ज उसी point पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो. It is possible. क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E is equal to q upon 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. For this case your r is 0 because your point lie at the charge ना. यहाँ चार्ज है यही पॉइंट है, तो फॉर r इक्वल टू फॉर दिस पॉइंट योर r इक्वल टू 0 मींस इज अनडिफाइंड ना, ई को अनडिफाइंड बोलोगे ना यार. सो इफ योर गॉसियन सरफेस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट सरफेस पॉइंट चार्ज मींस योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट ना. क्लियर आई बस वन. That's why your Gaussian surface will not pass through the point charge because electric field is undefined at the point charge. Got my point? But for extended object, अच्छा एक और चीज है. मान लो कि Gaussian surface से point charge पास कर रहा है. ये Gaussian ये मान लो कि ये point charge है और यहीं से Gaussian surface पास कर रहा है. तो अब क्या हुआ? इसको क्या लोगे? इनसाइड लोगे कि आउटसाइड लोगे? If you are applying Gauss law, phi is equal to q inside upon epsilon naught now. This q is the charge inside the surface, Gaussian surface. अब ये क्या है? ये चार्ज का surface पे ही है. And that is point means dimensionless, very small. So this is on the surface and this is very small. इसको inside लोगे कि outside लोगे? क्या लोगे? Inside या outside? It is impossible to decide now because this one has no dimension, very small. अंदर लेके बाहर आएगा डिसाइड. अब डिसाइड ही नहीं कर रहे हो कि अंदर लेके बाहर ले. How can you define the flux for that? Clear? So this is just. But if this is extended object, this is a line element. Line charge element means charge rod. Line charge element means charge rod. इसके लिए क्या होगा? गॉसियन सरफेस हमारा ऐसा है, तो यहाँ से तुम डिफाइन कर सकते हो कि this much of length is in the Gaussian surface and this is not. If there is a plane charge sheet and if this is your Gaussian surface, तो तुम बोल सकते हो कि इतना का हिस्सा क्या है बाबू? This part of the sheet is in the Gaussian surface and other is not. जब चार्ज की बात करोगे तो कितना होगा चार्ज इसके लिए? मान लो कि ये शीट है, चार्ज शीट है, उसका डेंसिटी क्या है? सिग्मा है और एरिया मान लो इसका ए है, तो क्यूब इनसाइड कितना होगा बेटे? क्यूब इनसाइड कितना हो जाएगा इसके लिए? सिग्मा इनटू ए. इसका मान लो इसके केस में क्या है कि लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी और अंदर में जो उसका लेंथ एल है, तो क्यूब कितना होगा? क्यूब इनसाइड बेटा लैम्डा एल. So for standard object you can decide how much charge is inside and how much charge is outside. But for point charge it is impossible because that is on the surface and point charge have no dimension. So how can you decide the charge is inside or charge is outside? Clear? And also at a point you can't find electric field, na? Clear? Because R going to 0, so is undefined. Got my point? So your your Gaussian surface should not pass through the point charge but may pass through the extended object. Got my point? Keep this in mind. सीधा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से लॉजिकल. जल्दी लिखो. कर लिया बाबू? कर लिया? डन? क्लियर? ये जिनको दिक्कत हो रहा था कमेंट कर रहा मैं और क्या करूँ मैं? पासवर्ड भी चेंज हो गया, आईडी भी चेंज हो गया, कल आउट हो गया गलती से या जो भी हो. तो कोई नहीं, वीडियो 10 मिनट कर रखा है, देख लेना है कि नहीं, हो जाएगा. क्लियर? So your Gaussian surface should not pass through the point charge but it may pass through extended object because if Gaussian surface passing through the point charge you can't consider the charge is inside or the outside, but for extended it is possible. Clear? extended object से तुम डिसाइड कर सकते हो कि अंदर है कि बाहर है, लेकिन point charge के लिए कैसे डिफाइन करोगे कि अंदर है कि बाहर? Clear? because that is the very small. Clear? तो इस पे क्वेश्चन है, that is the question IIT 2009 में आया था, सीधा इसी से क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट से. Clear? करो इसको. So this is your question. A disc of radius a upon 4 having a
uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with its center at minus a by 2 0 0. This is the coordinate of the center. A rod, and that is full stop. A rod of length A carrying a uniformly distributed charge distributed charge 8 coulomb is placed on the x-axis from x is equal to a by 4 to x is equal to 5 a by 4. 2-point charges. 2-point charges minus 7 coulomb and 0 coulomb are placed at a by 4 minus a by 4 0 and minus 3a by 4 3a by 4 0 respectively. Consider a cubical surface formed by 6 surfaces x is equal to plus minus a by 2, y is equal to plus minus a by 2 and z is equal to plus minus a by 2. Thus electric flux through this cubical surface is. Yes, so this is a question. So होगा क्या? A disc of radius a by 4 having uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with its center at minus a by 2 0 0. Clear? This is the coordinate of the center. This is the coordinate of the center, and radius of this is a upon 4. A rod of length a carrying a rod of length. So this is the length. Clear? And this is also radius. Clear? A rod of length a carrying uniformly distributed charge 8 coulomb is placed on the x-axis from x equal to a by 2 to x equal to 5a upon 4. 2-point charge minus 7 coulomb and 3 coulomb are placed at. These are the coordinate. ये minus 7 coulomb का coordinate है बेटे, और this is the coordinate of plus 3 coulomb. यार ये 3 coulomb का coordinate है. तो चार्ज का देखो coordinate. एक चार्ज डिस्क है जिसका रेडियस दे रखा है, तो उसका सेंटर कोऑर्डिनेट दे रखा है. ये उसका सेंटर कोऑर्डिनेट. इसी द सेंटर कोऑर्डिनेट. क्लियर? सेंटर कहाँ? क्लियर? अब आप रॉड है वो कहाँ से कहाँ है? x इक्वल टू ये 2 x इक्वल टू ये रॉड है. रॉड का ये कॉन्फ़िगरेशन है. क्लियर बाबू? और एक चार्ज कहाँ है? यहाँ है माइनस 7 कूलम और यहाँ है 7 कूलम 3 कूलम. क्लियर? तो अब इसको फिगर पे बनाओ. तो मान लो ये सामने लिख लिया, ये इन्फॉर्मेशन सारा लिख लिया. क्लियर? क्लियर? तो कुछ नहीं, फिगर बनाओ पहले. और फ्लक्स पूछ रहा तो होगा क्या? देखो पहले तो है 3D. दिस इज द 3D फिगर x y z. तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं बाबू. पहले इसको ये देखो ये ऐसा ले लो, कुछ यहाँ बनाते हैं. ये ले लेते हैं अपन x, ये y. क्लियर? तो ये होगा माइनस x, ये हो गया
माइनस वाई, और जेड किधर ले लो, जेड इज दिस इज योर जेड, दिस इज योर जेड, इधर ओके, इधर ओके, सो दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर जेड। अब क्या है कि डिस्क कितना है बाबू, रेडियस कितना, a/4 एंड हैविंग a/4 रेडियस उसका, और सेंटर कहाँ है बेटे, -a/2 0 0 -a/2, दिस इज x, दिस इज y एंड z, यानी x सेंटर ऑफ डिस्क इज ऑन द x एक्सिस ना, सो दिस इज x इज इक्वल टू दिस इज 0 0 ना, सो दिस इज x एंड सेंटर इज -a/2 0 0, यानी कि सेंटर का डिस्क कहाँ होगा, यहाँ होगा -a/2, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ डिस्क। अब इस सेंटर से a/4 रेडियस का ये हाफ है, ये a/2 है, और यहाँ से a/4 कितना होगा, ये भी a/4 होगा ना, यहाँ से ये बना दो क्या होगा भैया, ये क्या होगा, डिस्क होगा। हाँ चलो वेट करो थोड़ा सा, नेटवर्क इशू हो सकता है, क्लियर दिख सकता है कि 4-5 दिन से इतना दिक्कत है, मैं क्या बताऊं, 4-5 दिन से दिक्कत आ रही है। वेट करो 2 मिनट से शुरू करोगे वेट करो, अब दिक्कत, तो वेलकम बैक, शुरू करते हैं फिर से। बहुत बुरा लगता है यार, एक ही तो काम है पढ़ाना, वो भी नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, क्लियर। अब फिर शुरू करें कहाँ से यार, क्योंकि मूड था, कहाँ था मैं, कहाँ चला गया, कहाँ था मैं, नीचे से रात पे, हाँ इधर था, हाँ इधर डिस्क पे था, तो ये क्या है सेंटर है इसका, ये गलत हो गया, ये सेंटर है, और a/4 रेडियस का क्या है बेटा, डिस्क कहता है, ये a/2 है, यहाँ से a/4 तो इधर होगा ना, ये बना दिया मैंने, तो दिस इज योर कन्फिगरेशन। नाउ थिंक अबाउट द रॉड, रॉड कहाँ है, a/4 से कहाँ है, 5a/4, a/4 किधर होगा बेटे, अगर ये a/2 है तो इधर a/4 होगा, और 5a/4 कहाँ होगा, 5 टाइम्स में इसका, 5 टाइम्स, तो 1 2, ये कितना हो जाएगा 3a/4 ना, आ ये बात समझ की नहीं, ये हो जाएगा 4a/4, ये हो जाएगा 5a/4, क्लियर। अरे इसको भी लिख दो 2a/4, आप बात समझ आई, हिसाब किताब बराबर। तो कहाँ से कहाँ रॉड है बेटा, a/4 टू 5a/4, तो यहाँ से रॉड है, यहाँ से रॉड कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ये रॉड है, ये ये रॉड है, यहाँ से कोई दिक्कत, क्लियर सबको, ये क्लियर फिगर, यहाँ से रॉड यहाँ है, यहाँ डिस्क के लिए ये रॉड है। नाउ उधर से 4 -7 कूलम, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है, a/4 -a/4, क्या हुआ, अभी भी गया, सो -7 कहाँ है, a/4 और -a/4, सो a/4 इज दिस एंड -a/4 किधर होगा, नीचे होगा, तो माइनस, इसको लिख लो -a/4 इधर होगा, तो कोऑर्डिनेट का ये दिख रहा है सबको कि नहीं, ये क्यों फिगर का बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये क्लियर है सबको ना, ये दिख रहा है ना सबको, कि फिगर को जूम करूं, गुड। तो यहाँ पर है -7 कूलम बेटे। अब देखो 3 कूलम कहाँ है बेटे, 3 कूलम का कोऑर्डिनेट कितना है, -3/8 3/8 -3/8 कितना होगा, ये मान लो कि a/4 है, तो ये सॉरी -3/4, ये a/4 है, ये कितना होगा 2a/4, तो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, माइनस, यही होगा ना, a/4 3 a/4 विद माइनस साइन, क्लियर। यहाँ सॉरी ये कोऑर्डिनेट पूरी हुआ, दो ये x वाला ये और y वाला कहाँ है, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट किधर है, 3a/4 ऊपर, यार सही से फिगर बनाता हूँ मैं, ये लिख लिया ना सबने, लिख लिया ना, ये सही से फिगर बनाता हूँ, ये ढंग से नहीं आ रहा है, तुम लोग बता देना चार्ज का लोड कितना है, क्लियर। देखो ये बाबू अपना कोऑर्डिनेट ले लेते हैं आप, क्लियर, ये ले लेते हैं a/4, ये ले लेते हैं 2a/4, ये ले लेते हैं 3a/4, ये ले लेते हैं 4a/4, ये ले लेते हैं 5a/4, इधर ले लेते हैं a/4, इधर ले लेते हैं 2a/4, 3a/4 और 4a/4, इधर ले लेते हैं a/4, बिकॉज a/4 अपना यूनिट है, इधर ले लेते हैं 2a/4, 3a/4, इधर ले लेते हैं a/4, 2a/4, 3a/4, क्लियर। अब देखो कहाँ था सेंटर, बताओ, और डिस्क वाले में क्या था, डिस्क वाला कहाँ था सेंटर, उसका सेंटर कहाँ था, a/4 पर सेंटर था, a/4 पर सेंटर था,
पे क्वेश्चन देखो, सेंटर A/2 पे था, रेडियस A/4। तुम बोल रहे हो A/4। देखो बेटे सेंटर कहाँ है, सेंटर है तुम्हारा, सेंटर है -a/, सुनिए सुनो सेंटर यहाँ मत करो, सेंटर यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर क्लियर, ये डिस्क का सेंटर है और रेडियस कितना A/4, तो A/4 रेडियस बना हुआ तो कैसा होगा, ये क्या होगा बेटे, ये डिस्क हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा कहाँ है, लेंथ कहाँ है, A/4 से कहाँ से जा रहा है रॉड का, A/4 टू, रॉड कहाँ से जा रहा है, A/4 टू 5A/4, यानी यहां से यहां तक, यानी कि रॉड ये है, ये रॉड है, ये रॉड है बेटे, क्लियर, ये पूरा क्या है, रॉड है। अब देखो -7 कूलम कहाँ है, -7 कूलम का कोऑर्डिनेट कितना है, -7 कूलम का कोऑर्डिनेट है A/4 -A/4 और 0, तो A/4 की तरफ बाबू A/4 ये और -A/4 नीचे, यानी कि यहाँ कोऑर्डिनेट होगा उसका, क्लियर। सो दिस यहाँ पर क्या -7 कूलम चार्ज है यहाँ पर। दूसरा क्या है 3 कूलम कहाँ है बाबू, 3 कूलम -3A/4, सो दिस इज -3 और +3A/4, यानी कि यहाँ कहीं चार्ज होगा, क्लियर। सो यहाँ +3 कूलम चार्ज है। अब बात समझ आई सबको, क्लियर। दिस इज योर कंपेयर, दिस इज चार्ज डिस्टेंस, यहाँ +3 कूलम है, यहाँ -3 कूलम है, ये रॉड ऑफ लेंथ है और ये रेडियस ऑफ A/4, क्लियर। अब कह रहा है कि देयर इज अ गॉसियन सरफेस एंड दैट इज क्यूबिकल। गॉसियन सरफेस क्या है बेटे, क्यूबिकल, क्लियर। सो गॉसियन सरफेस and that is cubical, क्यूब के फॉर्म में, and the side is given cubical है, क्लियर। और सरफेस कहाँ कहाँ है, एक सरफेस है +A/2, क्यूब है, उसका सरफेस कहाँ है +-A/2, यानी एक सरफेस कहाँ बेटे, यहाँ है और एक यहाँ है, +A/2, यही हो गया ना 2A/2। ये क्या है, EX वाला सरफेस, एक सरफेस यहाँ है, आर ये बात समझ, देख लो कोऑर्डिनेट, देखो सरफेस का कोऑर्डिनेट कितना है +A/2 और y का कितना है +A/2, यानी A/2 का मतलब यहाँ पर होगा, ये कोऑर्डिनेट है इसका, ये एक सरफेस ये है, क्लियर। दूसरा सरफेस यहाँ है, यहाँ, क्लियर, ये क्यूब है। आर ये बात समझ। अब कह रहा है कि इसका फ्लक्स बताओ, इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा वो बताना है तुम्हें। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब कितना होगा मान लो, अब देखो ये पूरा लेंथ कितना है बेटे, पूरा लेंथ है, इसका कितना लेंथ होगा, पूरा लेंथ मान लो 5A/4 -A/4 है पूरा लेंथ है, यानी कि इसका लेंथ कितना होगा, A हो जाएगा ना, यानी पूरे का लेंथ कितना है, A है, लेकिन अंदर में कितना लेंथ है बेटे, अंदर में कितना लेंथ है, ये मान लीजिए लेंथ कितना होगा A/4। अरे इस गॉसियन सरफेस के अंदर रॉड का कितना पार्ट है, A/4 ना, तो रॉड का कितना पार्ट है बेटे, रॉड का कितना हिस्सा है, रॉड का है, रॉड का A/4 है, रॉड का कितना है A/4 हिस्सा गॉसियन सरफेस में। अब देखो क्यूब की बात करो, अब ये क्या है, ये सेंटर से पास कर रहा है ना, तो क्यूब का कितना है हाफ, सॉरी डिस्क का कितना है बेटे हाफ क्या है अंदर में। अब ठीक है अबाउट दिस चार्ज का कोऑर्डिनेट कितना है -A/4 और -A/4 एंड +A/4, यानी कि ये अंदर, ये क्यूब का अंदर है ना, तो दिस -7 कूलम क्या है अंदर में है, यानी -7 कूलम अंदर में, क्लियर, गॉट माय पॉइंट। अब थिंक अबाउट दिस +3 कूलम, ये कहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना 3 है, ये क्या है बाहर है ना, तो ये अंदर में। टोटल चार्ज कितना है बेटा क्यूब में, ये है रेडियस का रॉड का A/4 और डिस्क का हाफ और -7 कूलम। टोटल चार्ज फाइंड कर लो, कुछ प्लस और कुछ माइनस है, और सॉल्व करोगे 5 मिल जाएगा। गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, क्लियर हो, थंब अप करो, क्लियर। सो घर पे सबको करना है ये, और आंसर बेटा 5 का मैं बता दो इसका आंसर कितना आएगा, क्लियर, घर पे करके आंसर भेज देना। एंड 5 विल बी Q जो होगा Q वो -2 कूलम आएगा, कहाँ चला जाता -2 कूलम Q आएगा, तो 5 कितना होगा -2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्लियर, इजी कर लेना, क्लियर। सो ये हो गया, जल्दी लिखो, ये लिखना क्या है खुद कर लोगे ना कि लिखोगे, ये लिखोगे
जल्दी बनाओ फिगर, जल्दी बनाओ, 2 मिनट है, जल्दी बनाओ। कर लिया? डन डन, खुद करो, इजी है, कर लिया? क्लियर? इजी है, खुद करो। कर लोगे ना? देयर इज अदर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the electric flux of Gaussian surface is that enclose the charged particle in free space is given है Q1 is equal to -14 nanocoulomb, Q2 is equal to 78.85 nanocoulomb and Q3 is equal to -56 nanocoulomb। ये बाबू आया था जेई, मतलब वही है ट्रिपल ई 2001 में। ये है ऑप्शन 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बी है 10⁻³ कूलम न्यूटन पर n-2, सी 6.32 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड डी इक्वल टू 6.32 into 10⁻³ न्यूटन कूलम न्यूटन (10⁻⁻1 और ऐसा कुछ सरफेस ये है सरफेस बाबू, इस पे चार्ज कितना Q1 Q2 और एक ये सरफेस है इसके अंदर चार्ज है Q3, ये सरफेस ये है और ये सरफेस ये B है। सो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू सरफेस A? इधर बड़ा वाला A सरफेस है और छोटा वाला B सरफेस है, तो A के थ्रू फ्लक्स बताना है। बताओ कौन बताएगा? Q2 की वैल्यू है 78.85 नैनोकूलम, 78.85 नैनोकूलम। करो, टेल मी द आंसर। डन 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 किया किसी ने? ऑप्शन ए जानवी, ऑप्शन ए। और बोला जाए, बोल जानवी ऑप्शन ए। अदर बोलो जल्दी। सर ऑप्शन ए। श्रुति ऑप्शन ए। बाकी बच्चे बोलोगे जल्दी, डोंट वेस्ट माय टाइम, जल्दी बताओ। टेल मी द आंसर। मेरा भी ऑप्शन है,
अब करने क्या दीजिए, करो तुम लोग, इतना इजी है घर पे करना। किसका ये ऑप्शन है? प्रियंका। सबका है, हाँ सबका ऑप्शन ये है। इजी क्वेश्चन ये तो कर सकते हो, कुछ नहीं करना है यार। ये सर्फेस के लिए क्या होगा, टोटल चार्ज अंदर में मींस योर फाई इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन कर दो, क्या आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि इसके लिए बात करोगे क्या होगा, ऑल चार्ज आर इनसाइड द सरफेस ये ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बी यानी फाई हो जाएगा, और फाई बी कितना होगा, फाई बी विल बी Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन, क्लियर। फाई बी की बात करो सर, फाई ए ऑल चार्जेस आर इनसाइड द सरफेस, बट फॉर फाई बी ओनली टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर इनसाइड द सरफेस, क्लियर। तो कर लेना। Now we will find the electric field due to a line charge element. Line charge. Electric field due to line charge. क्लियर। देखो लाइन चार्ज के लिए मैंने पहले बताया था, तुम लोगों ने ये किया था, ये लाइन चार्ज है बेटे, प्लस मान लो इस पे चार्ज है, तो तुमने क्या किया था, मान लो यहाँ से d डिस्टेंस पे देयर इज ए पॉइंट P और द क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट। तुमने क्या लिया था, एक लाइन एलिमेंट x डिस्टेंस पे dx का लाइन एलिमेंट लिया था, फिर ऐसा कुछ किया था और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके फिर इंटीग्रेट किया। दैट इज द वेरी टफ टास्क, वो बहुत टफ था, एक से दो पे ले सकता था, क्लियर। विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ यू कैन इजीली फाइंड, क्लियर। विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ यू कैन इजीली फाइंड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ऐसा कुछ आया था ना इनफाइनाइट के केस में। इनफाइनाइट के केस में ये आया था ना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर r इज दिस, क्लियर। यही आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, क्लियर। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यही आया था, क्लियर। विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ यू कैन इजीली फाइंड। देखो व्हाट दिस इज योर लाइन चार्ज एंड दैट इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, दिस ओनली गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर इनफाइनाइट, क्लियर। अगर इनफाइनाइट होता है ऐसा कुछ आया था, वो sin phi1 प्लस sin phi2, साइन और कॉस के फॉर्म में आया था, y एक्सिस और एक्सिस के अलाउंग, पता है सबको गॉट बाय पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, क्लियर। फॉर ए फाइनाइट लेंथ देयर इज x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज देयर इज ए y कंपोनेंट, क्लियर। ये सब अलग अलग केसेस था, दिस इज ओनली फॉर इनफाइनाइट, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर इनफाइनाइट। सो ये इनफाइनाइट है, तो ऐसे नीचे के डॉट डॉट दिखा दो, यानी कि लंबा जाएगा, क्लियर। देयर इज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट, दिस चार्ज एलिमेंट। तो होगा क्या मामू, ये मान लो प्लस चार्ज इस पे, सो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी जो क्लिक लिखा है। तो यहाँ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो द टास्क इज टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस एंड दैट शुड बी सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो दैट शुड पास थ्रू द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मींस योर गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू पॉइंट P and also your surface should be symmetrical to charge distribution. So this is a line charge, so the Gaussian surface which is symmetrical to this line charge will be a cylinder. तो सिलेंडर बना लो, तो सिलेंडर बनाओगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ सिलेंडर बनेगा। तो दिस इज योर गॉसियन सरफेस, क्लियर। अब गॉस लॉ अप्लाई करो, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट n ds इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दे रहा है दिस इज साइक्लिक, यानी कि पूरा इंटीग्रेशन सरफेस का लेना है, तो तीन सरफेस ले लो। एक ये, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, क्लियर। ये कर्व सरफेस यार, दिस इज अ सिलेंडर ना, दिस इज अ सिलेंडर, तो देयर आर थ्री सरफेस, तीन सरफेस ले लो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये कर्व वाला, क्लियर। तो ये वाला है कर्व वाला, ये है, क्लियर। कर्व वाला क्या है बाबू, ये है थर्ड वाला सरफेस, ये वन सरफेस, ये सेकंड सरफेस, नाम डाल दिया मैंने। अब देखो होगा क्या, if this is infinitely large है, इनफाइनाइटली लार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग एक्स होता है ना, ये पढ़े हो ना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, हमेशा इधर होगा इनफाइनाइट लाइन के केस में। देयर विल बी नो एनी y कंपोनेंट फॉर इनफाइनाइट चार्ज एलिमेंट, क्लियर। सो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये लाइन चार्ज एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर पॉइंट इधर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर है। अब इस सरफेस की बात करो, तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, इधर, और n किधर है, ऊपर ना, सो थीटा इज
90 डिग्री। इसके केस में phi1 कितना होगा 0 ना। फॉर दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड n इज अलोंग दिस डायरेक्शन। अगेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो phi2 इज इक्वल टू 0 मींस देयर इज नो एनी फ्लक्स थ्रू दिस एंड देयर इज नो एनी फ्लक्स थ्रू दिस। क्लियर। अब इसके केस में बात देखो, इसके केस में क्या होगा बाबू, इसके केस में क्या होगा, इस इधर कोई पॉइंट लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर कोई पॉइंट लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना। क्लियर। इधर मान लो ये चार्ज रॉड है एंड दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, तो इधर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट। यानी इस पॉइंट की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और n कैप भी इधर। अगर इस पॉइंट की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और n कैप भी इधर। क्लियर। मींस फॉर कर्व सरफेस, for this curved surface electric field is radially outward and also n is radially outward। ये सरफेस है और ये लाइन चार्ज है, तो ये लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर इधर रेडियली आउटवर्ड होगा ना, और ये अंदर है और ये सरफेस से तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड रेडियली आउटवर्ड और n भी है रेडियली आउटवर्ड, यानी एंगल इज 90 डिग्री ना। एंड आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम ऑन द सरफेस ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेम बिकॉज़ दिस इज सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर दिस कर्व सरफेस योर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, E and n are in the so what, अब इंटीग्रेशन फाई कितना होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन e ds cos ऑफ 0, यही होगा ना। अरे फर्स्ट सरफेस का 0 और सेकंड का 0, थर्ड वाला कंट्रीब्यूशन होगा ना, यानी क्या होगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन e ds इंटीग्रेशन, और ds कितना होगा गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, पूरा नहीं लेना है ना, बाकी दो का तो 0 हो गया, खाली इसका लेंगे ना। इसका कितना होगा पाई आर 2 पाई आर, 2 पाई आर इसका रेडियस, इसका सर्कम्फ्रेंस और 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर एल। ये हो गया क्या बाबू, इसका फाई हो गया। अब क्लियर, ये फाई मिल गया। अब दूसरा फॉर्मूला फाई का क्या है, दूसरा फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन, अब इसका लेंथ क्या है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पर यूनिट चार्ज कितना है बेटे लैम्डा। तो मान लो कि सिलेंडर का लेंथ है एल, कितना है बेटे एल, तो अंदर चार्ज कितना होगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। अब ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दे मस्ट बी इक्वल कर दो, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। क्लियर। तो अब एल से एल गया, E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r। कितना इजी टास्क है ना, सो इजी ना, सो इजी ना, विद द हेल्प ऑफ गॉस वी कैन इजीली फाइंड, सो इजी ना। क्लियर। जल्दी लिखो जल्दी, मैंने इसका फोटो डाल दूंगा, मैं फोटो डाल दूंगा, ठीक है, मेरे को कुछ बताना ये फोटो डाल दूंगा, जरूरी चीज है। अब टाइम इसलिए कि बायो की क्लास और मैथ्स की क्लास है तो मैं फोटो डालूंगा इसका ग्रुप पे, देखो अब होगा क्या बाबू, कुछ नेसेसरी है तो दुनिया बताती है, जो जो जानना है वो चीज देखो। सो दिस इज लाइन चार्ज एलिमेंट, मैंने क्या बताया था कि इफ दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, सो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज r। क्लियर। ये होगा फिर इनफाइनाइट। क्लियर। if this condition is valid, if your length of rod L is very greater than r, if your length of rod is very greater than r, means length of this rod is very greater than r, for that case मान लो ये लेंथ है इसका l, क्लियर, और ये पॉइंट है और इसका सेपरेशन है r, और या कंडीशन क्या है l is very greater than r, for that case you can apply Gauss law। इसके लिए तुम Gauss law अप्लाई कर सकते हो, and again इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आई बात समझ। तो इनफाइनाइट के लिए वैल्यू, इनफाइनाइट के लिए क्या होगा r, कुछ फॉर इनफाइनाइट योर r मे बी एनी नंबर, no limit, but if this one has finite length, yani rod has finite length, then Gauss law is only valid if your r is very less than the length of the rod। got my point। तो ये एप्लीकेशन में आगे करने वाले, मैं कंडीशन लेके सीधा Gauss law अप्लाई करूंगा। क्लियर। ये ध्यान रखना। क्लियर। तो अब हो गई, जल्दी लिखो और बाइंड अप करते हैं अगली क्लास में, फिर मैं शुरू करूंगा। Gauss law ही चलेगा अभी 2-3 क्लास, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। कोई भी डाउट हो वीडियोज देख लिया करो, है कि नहीं, और पढ़ाई करो घर पे। क्लियर। और नेटवर्क का इशू है तो वीडियो देख लिया करो, हो जाएगा।